Hello, good morning, students. Now, in the today's lecture, we are starting with next topic of insect entomology, that is metamorphosis in insects. So, what is metamorphosis? Metamorphosis is the transformation of an immature insect from a larva to a pupa to an adult. Look at this diagram here. This diagram is showing the definition of metamorphosis in insect. It's just the change in the shape of, or you can in the morphology of insect body. So look at this diagram. This is adult butterfly after just laying egg. After laying of egg, there is a hatching of egg. Out of egg, a insect came out, that is larva. After larva, there is number of molting. According to the insect, number of molting are different from insect to insect. And then larva is changed into pupa, and after some time pupa will get changed into an adult insect. तो बेटा जैसे जस्ट लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ आर्ट सेल्फ कि हम जब बर्थ होता है तो एज इट इज़ ना दो हाथ दो पैर in the case of human beings. So there is no any kind of metamorphosis within the human beings, but there are some insects that are showing a transformation in that कि वो जब उनकी अर्ली स्टेज होगी आफ्टर बर्थ तो वो कुछ और होंगे, कुछ टाइम बाद वो उनकी और हो जाएगी, जब वो अडल्ट होंगे तो उनकी शेप स्ट्रक्चर बॉडी की कुछ और होगी. तो दिस काइंड ऑफ चेंजेस विद इन द बॉडी, they we called it a metamorphosis. So types of metamorphosis: a metabolous metamorphosis, gradual metamorphosis, incomplete metamorphosis, and the complete metamorphosis. So starting with the first, a metabolous metamorphosis, that is without metamorphosis. Just eggs are immature, same shape as the adult. बेटा वो मेटामॉर्फोसिस जिसमें कोई चेंज ना आए, जैसे एग टाइम पे शेप थी वैसे ही एडल्ट की हमारे पास शेप होगी. ठीक है. गेट बिगर, नो डिस्टिंक्ट रीअरेंजमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. नो डाउट इट विल साइज विल गेट इंक्रीज, साइज बड़ा हो जाएगा बट शेप रिमेन सेम. देन इमेच्योर जुवेनाइल्स, जुवेनाइल स्टेज होती है बेटा हमारी, मेच्योर स्टेज एडल्ट. ठीक है. एंड देन चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग ग्रोथ आर माइनर. तो बेटा जो उसकी फॉर्म में चेंज आएगी वो बिल्कुल नहीं होगी, अगर होगी तो लिटिल बिट होगी, बहुत ही माइनर होगी. ऑल इमेच्योर स्टेजेस रिजेंबल एडल्ट. सारी इमेच्योर स्टेजेस किसके साथ रिजेंबल करेंगी? एडल्ट के साथ. एग्जाम्पल हमारे पास है स्प्रिंग टेल्स हैं, सिल्वर फिश हैं, फायर ब्रैट्स हैं. दीज आर द एग्जाम्पल्स. यू कैन सी ओवर हेयर there is only increase in the size of the body of the insect, but there is no any change in the body shape. Then gradual metamorphosis. Second, immature are called nymphs. बेटा जो immature होंगे उनको हम nymphs बोलेंगे. चेंज इन फॉर्म इज ग्रेजुअल. ग्रेजुअली मतलब कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहेगी. तो ऑब्वियस चेंज होते होने से क्या होगा, हमारे पास वो चेंज होगी तो देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ सम एक्सटर्नल पार्ट्स, दैट इज़ विंग पैड्स बनेंगे बाहर. तो कलर और मार्किंग अलग हो जाएगी, जो शरीर पे निशान होंगे, जो कलर होगा वो भी चेंज होगा. निम्फ और जो अडल्ट होंगे उनका सेम हैबिटेट होगा, मतलब एक ही घर में एक ही अपने स्थान पे रह के वो अपने आप को चेंज करेंगे. तो इसकी एग्जांपल है ग्रास होपर्स, crickets or true bugs. Look at this diagram. It's showing gradual metamorphosis. After leg there is early nymph, then you are early nymph and late nymph, both are having different forms and shape and size. So this kind of metamorphosis are known as gradual, and at last adult is totally different from nymphs, and all body marks and shapes and other parts are different from nymph. Then is complete metamorphosis. Complete metamorphosis is also known as homometabolous. That immatures are called, जो immature होंगे
Yeah, I think you remember this thing ki, in the starting I'll show you the diagram. Say that is the first after egg, then larva, then pupa, and then adult. So this kind of metamorphosis is called complete metamorphosis. वो जो immature होंगे उनको हम larva और pupa बोलेंगे. इसकी एग्जांपल बटरफ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं, बिटल्स हैं, फ्लाइज हैं, आंट्स, बीज एंड वेब्स. सो जो लार्वा होगा बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करेगा अडल्ट के साथ. विंग्स जो और अदर फीचर्स होंगे तो वो आर इमोबाइल प्यूपल स्टेज. बेटा लार्वा प्यूपा स्टेज में वो तो ना इंसेक्ट चल पाएगा ना उड़ पाएगा, अनएबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. बट जो इमेच्योर एंड अडल्ट में और मे नॉट शेयर सेम हैबिटेट. बेटा इमेच्योर मतलब लार्वा और प्यूपा स्टेज पे उसका हैबिटेट कुछ और होगा, अडल्ट स्टेज पे उसका जो हैबिटेट होगा वो अलग होगा. जो इमेच्योर होंगे बेटा वो अडेप्टेड होंगे कि उनको फीडिंग करेंगे. ठीक है. तो जो अडल्ट होंगे वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और डिस्पर्सल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाएंगे. और बेटा मैंने पहले ही बोला था जो हमारी मोल्टिंग होती है पुराने फीदर्स का, पुरानी अपर बॉडी लेयर स्किन पार्ट का झड़ जाना, नई का आना, दैट इज़ मोल्टिंग. तो जो ये कॉन्टीन्यूसली बार बार एक से बाद दूसरे पुरानी का झड़ जाना, नई का आ जाना, दैट इज़ इंस्टार. उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टार. द इंसेक्ट इटसेल्फ बिटवीन मोल्ड्स, थर्ड instar larva. Then this is Homo metabolus life cycle. This is showing a very complete metamorphosis, a very clear diagram to you. So you can look at this. This is egg. After this, and there is first instar, that is molting, shredding of feathers or wings or outer outer integuments, that is cuticle, epicuticle or hypocuticle. Then second instar. After third instar, then after third instar larva is changed into pupa. ठीक है. After between egg and larva there are a molting stage. So each step, each molting is known as instar. Then pupa, then there is a formation of adult butterfly. Then again adult butterfly will lay eggs. Then next is incomplete metamorphosis, that is called hemimetabolous. Immatures are called naids. बेटा जो immature होंगे उनको naids बोलेंगे. ये मे फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, डैम्प सेल्फ फ्लाइज एंड स्टोन फ्लाइज. इमेच्योर डू नॉट क्लोजली रिजेंबल विद रिजल्ट. जो इमेच्योर टाइम पे जो उनकी बॉडी शेप होगी वो अडल्ट के साथ नहीं मैच करती होगी. तो बेटा इनके नीड्स की ट्रैकियल गिल्स होंगी, जो इनकी रेस्पिरेटरी पार्ट है वो गिल्स होंगे. ट्रांजिशन टू एडल्ट फ्रॉम इज ग्रेजुअल बेटा, और कॉन्टीन्यूसली इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होएगी. निम्फ एंड एडल्ट्स डेवलप इन डिफरेंट हैबिटेट्स. तो बेटा ये इनके निम्फ और जो मतलब इमेच्योर निम्फ होंगे और अडल्ट उनके लिए अलग अलग हैबिटेट होंगे. लुक एट दिस डायग्राम. This egg, this adult is laying egg, and after that nymph, then nymph is changed into adult. So this was the a type of incomplete metamorphosis. Hormonal control. So there is a hormonal control, we called it a juvenile hormone, that is in immature insect corpora alta, inhibits the genes and promote development of adult. बेटा जीन्स को इनहिबिट करेगा ये हार्मोन और अडल्ट की डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा. कॉजिंग इंसेक्ट टू रिमेन्स इमेच्योर. बेटा ये क्या करता है, इंसेक्ट को इमेच्योर रहने के लिए इमेच्योर रखता है. ठीक है. एंड द कॉर्पोरा ऑर्लाटा श्रिंक्स ड्यूरिंग द लास्ट लार्वल और नाइफियल इंस्टार. बेटा जो हमारी कॉर्पल अलाटा, ठीक है, इंसेक्ट जिसको जो इमेच्योर इंसेक्ट स्टेज है उसकी, ठीक है, उस पर ये क्या करेगा, हमारी वो श्रिंक कर जाएगी. और जो हमारा इसके श्रिंक करने से क्या होगा, जो इट्स जुवेनाइल हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, तो इससे हमारा जो हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा और उससे क्या होगा, इंसेक्ट जो होगा वो हमारा इमेच्योर से मैच्योर एडल्ट बन जाएगा.
that is hemimetabolous or pupa होलोमेटाबोलस, ठीक है। इनकम्प्लीट से हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी। तो इस ये हमारी जो जुवेनाइल हार्मोन है ये सेक्सुअल मैच्योरिटी लाता है, ब्रेन में न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स सिक्रीट करता है, तो ब्रेन हार्मोन को रीएक्टिवेट करता है, ब्रेन हार्मोन रीएक्टिवेट करता है कॉर्पोरा लाटा एंड जुवेनाइल हार्मोन प्रमोट करेगा। तो इन एडल्ट फीमेल्स स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ यॉर्क फ्रॉम द एग, ये हार्मोन होगा फीमेल्स में एग की फॉर्मेशन करेगा, मेल्स के बीच में प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेगा जो बेटा ज़रूरी होता है स्पर्मेटोफोर्स के लिए, सेमिनियल फ्लूइड मतलब गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा जिसमें सीमन प्रोड्यूस होगा मेल का। तो अगर ये हार्मोन नहीं होता तो जो इंसेक्ट होते हैं वो सेक्सुअली स्टराइल होते हैं, वो भांज होते हैं, वो उनमें रिप्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। सो दिस इज़ द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। लाइट टेम्परेचर और स्ट्रेस का इसके ऊपर इफेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल और आउटर फैक्टर्स। So they stimulate brain and stimulate corpus allottum just producing juvenile hormones. Within larva is change into pupa and pupa will ultimately change into adult. After the shrinking of corpus allottum, we have already read, the production of juvenile hormone is also stopped. Thank you for your attention. Okay. This is all about the today's topic.